नमस्कार, मैं दिनेश गिरप करियर सोच में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्टडी अब्रॉड। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया में ऐसे हैं कि जो बाहर के देशों में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या उसकी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट से जो जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है, जिन्होंने अभी जर्मनी से MS की पढ़ाई कंप्लीट की है। हेलो एवरीवन, करियर सोच में आज हमारे साथ जर्मनी से हमारे साथ है अमोल जाधव। जर्मनी में उसने माइक्रो सिस्टम्स में MS किया हुआ है। So he has just completed his MS from Germany and he is with us to share his experience as a student. What experience that he has gone through in last 2 years. He has been to Germany and studying in one of the universities over there. So today he will share his experiences, and I'm very sure that these experiences are going to be very useful for those who want to study in Germany. So Germany, US के बाद UK के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आज एक नया उभरता हुआ देश रहता है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस और नॉट ओनली इंडियंस बट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर seeking admission for their postgraduate courses and for their PhD. So welcome to you, Amol. Thank you very much, Dinesh Girab sir, for the kind introduction. And I would like to add to my introduction that I have been in Germany for last 2.5 years, and this September or August end would be the completion of 3 years. And yes, I've recently been graduated from my master's in smart systems, which is more towards microsystems, electronics, and also some mechanical and computer. So it's a mixture of all the courses into one. Frankly, it was a great experience studying for last 2.5 years, and currently I'm on my job search visa looking for opportunities in the field of electronics and core electronics as a hardware and software developer. हम व्यूअर्स को ये बता देंगे कि बैचलर्स में आपने पहले क्या क्या किया और फिर आपने जो जॉब कर रहे थे इंडिया में, जब बॉम्बे में थे, आप मुंबई में थे और जॉब कर रहे थे, तो वो कौन से एरिया में जॉब कर रहे थे? आपके बैचलर्स के बारे में पहले थोड़ा बताइए और फिर जाके हम लोग जॉब के बारे में और फिर जर्मनी चले जाते हैं। I feel very proud and honored to be as a bachelor's graduate from Vivekanand Institute. And उसके बाद मुझे campus interview में I got placed into this company called Petrofac India Engineering, which is into oil and gas detail engineering consultancy. So I started within a month as a graduate engineering trainee in Petrofac India in Powai. एंड वहाँ पे मैंने लगभग 11 महीने से लेके 1 साल तक मैंने जॉब किया एज अ इंजीनियरिंग ट्रेनी। एंड तभी मुझे मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनसे मेरी बातचीत बहुत ज़्यादा होती रहती थी एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कॉन्टेक्ट्स हो गए थे। तो दे सजेस्टेड मी कि रादर देन स्टेइंग हियर एंड वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब, it's better you try out some good courses in Germany. So कुछ colleagues थे जिन्होंने जर्मनी में जाके काम किया था 1-2 साल, तो उन्होंने बोला था मुझे कि आप चेक करो, ऐसे कुछ वेबसाइट्स है, पर मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं तभी भी। पर कैसे हो गया कि unfortunately there was a recession during that time where the oil prices reduced drastically from $140 per barrel to $40 per barrel. So there was a great deficit. So this and probably the similar situation is there today as well. Exactly. So it feels that whenever I graduate, there always comes a recession. So I felt during that time that jobs were going, and as a graduate trainee, I felt that if I stay here for more than 2 to 3 years, it would be then again I'd be going into a very narrower field. So I opted out from the company and I started preparing for my MS in Germany. And then comes the question, why Germany? So initially तो ऐसे था कि सस्ता एजुकेशन कहाँ पे मिलेगा, सस्ता एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन कहाँ पे मिलेगा, तो
वो सर्च मुझे जर्मनी पे लेके आया, क्योंकि यूएस के लिए बहुत सारा मनी, आई मीन बहुत सारा इनकम सोर्स लगेगा और बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा फीस में भी, और प्लस वहाँ का रहन सहन सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैंने इसलिए सोचा कि जर्मनी करेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम जर्मन सीखना चालू किया। मैंने गोइथे इंस्टीट्यूट मैक्स मुलर बर्न विच इज़ इन काला घोड़ा CST, तो मैंने वहाँ से अपना जर्मन लैंग्वेज का A1 कोर्स पूरा कर दिया था। एंड और मैंने एप्लीकेशंस करना भी शुरू कर दिया था। देयर आर ऑलवेज 2 intakes, October and like US, there are always 2 intakes, spring and something, I think summer or something. So March and October intake बोलते हैं बेसिकली जर्मनी में। तो इनिशियली मैंने मार्च इंटेक के लिए शुरू किया इंटेक लेना, पर जैसे कि मार्च इंटेक में बहुत कम कोर्सेस होते हैं और विंटर इंटेक में बहुत ज्यादा कोर्सेस होते हैं। पता नहीं वो अभी पता नहीं क्यों, बट होते वैसे। तो मैंने सोचा था कि एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए अप्लाई करूंगा, कॉलेजेस के लिए टारगेट नहीं करूंगा। तो उस तरीके से मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आप ये मत देखो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। और मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे भी बोलते हुए देखे कि अभी भी कि मुझे जो अप्रोच करते कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो जॉब मिलेगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द फंक्शन और दिस इज नॉट द फॉर्मूला विच यू शुड गो अहेड विद। तुम्हारा बट इंडिया में ऐसे है, हम सब जानते हैं कि देयर आर फ्यू टॉप कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी जॉब, कैंपस प्लेसमेंट जो जॉब आपकी पक्की होती है, और आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो जॉब मिलती नहीं है। ये तो टिपिकल एक समझ है इंडिया में। तो मतलब आप ऐसे कहना चाहते हो कि वहाँ पे वो इतना मैटर नहीं करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आप एमएस? यस यू वांट टू से दैट? यहाँ पे मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हो। यहाँ पे मैटर वो करता है कि आप किस में मास्टर्स कर रहे हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट आपको रहेगा किसी चीज में, उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे भी और एक्सेल भी करोगे। तो वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि जॉब। तो जर्मनी में अगर पढ़ना है या फिर यूएस में पढ़ना है तो आप ये मत सोच के आओ कि मुझे जॉब के लिए पढ़ना है। हालांकि 90% लोग उसी के लिए आते हैं, बट इनिशियली यहाँ के आपका वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है कि अब जॉब नहीं, एक्चुअली वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि टेक्नोलॉजी जो कि हमें सिखा रही है और जो कि हम सीख रहे हैं उससे और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और अल्टीमेटली जाके आप बोलते हो कि सिर्फ जॉब नहीं करना है, तो ऐसा जॉब करना है जिसमें एक वैल्यू ऐड हो मेरे लिए भी और सोसाइटी के लिए। तो उसी तरीके से मेरा जॉब हंट भी अभी वैसे ही चल रहा है, जिसमें से मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँ मेरी लाइफ में भी और सोसाइटी में। एंड गेटिंग बैक टू लाइक कि जर्मनी में मैं आया तब। सो आई केम इन जर्मनी इन September 2017. So उससे पहले एक बात let us summarize what you just now said. Very after when you were working in a company at that time, the very first thing that came into mind, like when you decided to go for higher education, you zeroed in with Germany. तो यूएस से आपने प्रेफरेंस दिया जर्मनी को। इसके रीजन, सबसे पहला बड़ा रीजन था कि वहाँ पे जो कॉस्ट है, एजुकेशन की कॉस्ट है, वो यूएस एजुकेशन और वहाँ पे रहने की जो कॉस्ट होती है वो यूएस से कहीं ज्यादा कम है, राइट? तो यस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली फीस स्ट्रक्चर, मतलब कि किसी कोर्स के लिए फीस नहीं होती थी। हालांकि अभी वो शुरू हो गई है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहाँ पे सारे गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। बट इनिशियली जर्मनी ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए, एंड दे थॉट कि they are not able to cope up with the supplies they are providing, because they didn't just want to provide the supplies but a quality supplies. So उसके लिए उन्हें भी थोड़ा फंड्स की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करना शुरू कर दिया कॉलेजेस के लिए, कोर्सेज के लिए। और पर मुझे लगता है कि वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है यूएस के कॉलेजेस के फीस के हिसाब से। Okay, and secondly, yes, आप कहना चाहते थे? No, you can continue. Okay. So and secondly, obviously एक तो कॉस्ट हो गया और दूसरा एजुकेशन स्टैंडर्ड।
मुझे लगता है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज कहीं पे भी यूएस की यूनिवर्सिटीज से कम नहीं है। आपका क्या है? मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जर्मन की यूनिवर्सिटीज कैसे, क्योंकि मैंने यूएस में पढ़ाई नहीं की है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि जर्मन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। कि वो लोग यहाँ के स्टूडेंट्स भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में, मतलब प्रोजेक्ट्स भी करते तो ऐसे करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका एंड प्रोडक्ट एक सीधा मार्केट प्रोडक्ट है। तो हमारे यहाँ मैं इंडिया से कंपेयर कर सकता हूँ। इंडिया में टैलेंट बहुत है, गाइडेंस भी बहुत है, पर हमारी थिंकिंग ऐसी होती है कि हमें कम टाइम में ज्यादा अचीव करना है, पर हम ये भूल जाते हैं कि क्वालिटी भी एक चीज होती है जो हमें अचीव करनी पड़ती है। सो वो मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे लोग टाइम लेते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चर है स्टूडेंट्स में भी, और प्रोफेसर्स भी वो ज्यादा बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो करके। कि हम जैसे इंडिया में भी हम नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे भी ये लोग नोट्स बनाते हैं कि ये लोग भी अपने अपने नोट्स बनाते हैं, बट इनका नोट्स बहुत वेग नहीं होते। They always try to summarize everything into one page, every concept into one page concept, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। And at the end of during the exam they just go through that page and they give the exams. So हमें ये देखना है कि ये how they actually narrow everything and get to a conclusion, get to an end product. So ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, R&D में बहुत ज्यादा काम होता है, बट इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ वर्किंग है, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर चीज को नैरो करते और रिजल्ट ओरिएंटेड करके बाहर निकालते। तो ये बहुत अच्छी बात है इनमें, और ना कि सिर्फ कंपनीज में, ये इस तरीके की क्वालिटी वर्किंग और ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग ये इन्हें कॉलेज से सिखाई जाती है। मैं तो कहूँगा कि स्कूल से सिखाई जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि इनके जो नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, दे आर वेरी पेक्यूलर अबाउट दिस थिंग्स। एंड मैंने वो भी देखा है कि इनके स्टडी पैटर्न ऐसे होते हैं कि इन्हें सब कुछ नहीं जानना, मतलब उन्हें दे डोंट वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ओके, एंड दे वांट टू बी मास्टर ऑफ समथिंग, वन थिंग व्हिच दे नो अबाउट इन डिटेल। और जब आप इंडिया में पढ़ रहे थे, आप यू वेर अ स्टूडेंट फॉर ऑलमोस्ट 15 years in India, right? Yes. That is. So these are the number of years which we spent studying over here till graduation. और उसके बाद में आपने 2 साल जर्मनी में पढ़ाई की। कितना इजी था या डिफिकल्ट था वहाँ के करिकुलम से वाकिफ होना और उसके साथ नाता जोड़ना और उसमें एक्सेल करना? यहाँ का करिकुलम इंडिया के करिकुलम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंड होता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होता है। इंडिया में अगर हम 4 साल किसी बैचलर्स करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स सब्जेक्ट से, एंड करते हैं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तक, पर उसके बीच में इतनी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि वो समराइज करना फिर इजी नहीं हो जाता हमें। पर यहाँ पे वैसे नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप कोई एक चीज पढ़ रहे हो तो आपको 4 साल एक ही चीज पढ़ाएंगे, पर अगर किसी को इंटरेस्ट आता है कि कोई चीज एक स्पेसिफिक चीज के अलावा कुछ और चीज पढ़ने की, तो वो फिर क्या करते हैं, वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की तरह उसे ले लेते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि मैं कुछ चीजें थोड़ी ये भी पढूं, थोड़ी वो भी पढूं, और फिर मेरा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट की तरह मैं उसे इम्प्लीमेंट करूं, जिससे कि उन्हें और भी सब्जेक्ट्स के नॉलेज आ जाता है। जबकि इंडिया में मैंने देखा कि मुझे ज्यादा की थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा था, एंड ऑफ द सेमेस्टर जाके ज्यादा करके प्रोजेक्ट्स करने मिलते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हर सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और हर सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको लेके वो थियरी इनटू प्रैक्टिकल कन्वर्जन आ ही जाता है, जिससे कि एक मतलब ये आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि ये बहुत नेसेसरी है, बट एक्चुअली मैंने इम्प्लीमेंट होते हुए ज्यादा जगह पे देखा नहीं है, जो कि मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होता है एक्चुअली। धीरे धीरे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम भी वही उसी और चल पड़ी है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डाउनग्रेडेड है या बहुत ही बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि जो स्टूडेंट जो मैंने यहाँ के भी एडमिशन कमेटी में मैं एज अ पार्ट था, तो मैं उनको भी मैंने ये चीज बोली है कि अगर आपको इंडिया के स्टूडेंट से किसी एप्लीकेशन आती है और अगर आप 60% से ऊपर परसेंटेज देखते हो
तो आप ये समझ लो कि जर्मनी के हिसाब से वो 90% है। मैंने उनको ये भी बोला है क्योंकि हम इतनी चीजें एक साथ सीखते हैं, इतनी मल्टीटास्किंग सीख जाते हैं कि एक 4 साल के बैचलर्स में मैं ये कहूंगा कि मैं किसी एक चीज में डिटेल स्टडी नहीं की है, बट मैंने जिस तरीके की मल्टीटास्किंग की है ना वो अलग लेवल की थी। तो वो मैं बोलूंगा कि एक इंडिया से जो स्टूडेंट बाहर जाता है ना, he has already faced all the difficulties which he will be facing in future. तो उस तरीके का प्रिपरेशन इंडिया में हो ही जाता है। So rather it was easy. Yes. Actually, क्योंकि यहाँ के एग्जाम्स कैसे थे, यहाँ पे हमें 5 मार्क्स के लिए इंडिया के जैसे एक पेज का आंसर नहीं लिखना पड़ता, या 5 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ते। The marks are not distributed like this. यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए एक वर्ड लिखना है, that's the answer, that's the question. तो आपको यहाँ पे वो चीज अच्छी है। तो आप ये थोड़ा एग्जैगरेट कर रहे हो क्या, एक वर्ड लिखना है 5 मार्क्स के लिए, या सच्ची में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ही करना है। ये पेपर्स है, यहाँ के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा या जिसमें 4 या 5 पेजेस रहेंगे, और आपको उसी में आंसर्स लिख के वापस दे देना है। सो आपका ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर अलग है, आंसर शीट्स अलग है। यहाँ पे आपको एक ही फिल इन द ब्लैंक जैसे कोई क्वेश्चंस रहते हैं, पर यहाँ के क्वेश्चंस इतने ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपको ओपन बुक्स एग्जाम्स होते हैं, तो आपको सारे बुक्स खोल के आंसर्स ढूंढ के आपका दिमाग लगा के यहाँ के फॉर्मूला शीट्स देख के यू नीड टू कम टू अ कंक्लूजन विद वन स्पेसिफिक आंसर, जो कि ज्यादा मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस हमारा ज्यादा ट्रिगर करता है उसकी वजह से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया है कि ये चीज है, आप इसके लिए प्रोग्राम लिख दो, जो हम घर से पढ़ के आ जाते हैं और लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग देखा जाता है, हर एक का आंसर अलग रहता है यहाँ पे, और आपका वे ऑफ थिंकिंग से आप जो आंसर लेके आते हो, और हर आंसर राइट होता है। यहाँ पे आपकी वे ऑफ थिंकिंग देखते हैं कैसा है, ना कि तुम्हारा आंसर क्या है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के एग्जाम्स में, और एक्चुअली वैसे ही होता है। एग्जाम्स आर कंडक्टेड ओनली फॉर 45 minutes to 1 hour. Final exam. Any given exam. Maximum 45 minutes. Maximum one paper 45 minutes for a specific amount of marks. Like say 70 to 80 marks या 100 marks, so it's only for 45 minutes, and that's the reason I'm telling you they give 5 marks for writing one specific word, but writing that one specific word is also very thought process आपका बहुत clear होना चाहिए कि आप किस चीज पे एक्चुअली काम कर रहे हो, क्या लिखने वाले, तो वो ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता कि भाई मैं पूरा साल पढ़ूंगा, रट्टा मारूंगा, हो गया, और जाके आंसर लिखूंगा। जब तुम ये बात बोल रहे हो मुझे वो 3 इडियट का सीन याद आ रहा है, जहाँ पे मशीन क्या होती है उसका आंसर देता है। वही सीन याद आ रहा है। एनीवे, तो you have done your bachelor's in instrumentation, right? Instrumentation engineering, right? और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ पे एमएस करने गए तो आपने माइक्रो सिस्टम्स चुना, राइट? Yes. तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेजुएट अगर वहाँ पे इंडिया में जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है और जर्मनी जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे मास्टर्स के लिए, और क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अगर मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है तो आपको इसी ये पर्टिकुलर कोर्स में ही एडमिशन मिलेगा मास्टर्स के लिए, या फिर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि देख ये एक्चुअली ना, ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जिस तरीके से आपने पूछा है ना, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा कि ना कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन, मुझे लगता है कि अभी के जनरेशन से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ उनके फील्ड में बल्कि और ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में, और एक ऐसा सब कुछ सीखना चाहते हैं आगे जाके। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप स्टूडेंट्स इंडिया से आ रहे हैं कुछ, और अगर वो इंस्ट्रूमेंटेशन से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है या फिर कंप्यूटर से है या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या और किसी बीएससी की है, किसी ने एमएस बीएससी इन फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बट यहाँ पे आके ना आप, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है, रादर देन ये देख के कि
आप किस, क्योंकि दो तरीके के आप थॉट प्रोसेस रख सकते हो। एक तो आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा करोगे। और दूसरी चीज ये है कि अभी का जो टाइम है उसमें सबसे ज्यादा इवॉल्विंग फील्ड कौन सी है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आईटी रेवोल्यूशन आया, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पर अभी एआई का रेवोल्यूशन चालू है। तो अभी का फील्ड जो है जैसे कि सारे इंजीनियरिंग प्रोसेस, सारे प्रोडक्ट्स आपके अल्टीमेटली जाके एआई में वो मिक्स हो जाते हैं कि आपका एंड प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं एआई इंक्लूड हो ही जाता है। तो मैंने देखा है कि ज्यादा के स्टूडेंट्स जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है या कंप्यूटर से है, मैंने देखा है ज्यादा डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। एक तरीके का ऐसा भी है कि किसी को इंटरेस्ट बचपन से होता है, किसी को इंटरेस्ट आ जाता है मार्केट वैल्यू देख, तो वो भी होता है कि अभी का मार्केट वैल्यू ये है तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पर जैसे मैं आपके क्वेश्चन जो था उसका मैं स्पेसिफिक आंसर देना चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर कोई जाना चाहेगा तो उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या एप्लीकेशंस, किस कोर्स में वो एप्लीकेशन कर सकता है। तो हाँ, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स जो था वो बेसिकली इट्स अमालगमेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स as well as control systems and as well as mechanical to an extent. Mechanical to an extent, but not much more. Not much, but yes. And also a bit of programming, say embedded systems. So यहाँ पे आके आपको जब आप एप्लीकेशन करते हो तो इन्हों का थॉट प्रोसेस यही होता है कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने वो चीज पहले थोड़ी भी पढ़ी है, या फिर आपको उस चीज के बारे में थोड़ा भी वर्क एक्सपीरियंस है, या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए उस पे। ये कोई यूनिवर्सिटी देखता है, कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन दिए जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में आपका अगर एप्लीकेशन ज्यादा उनको अपीलिंग लगा तो वो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक कोर्स के लिए, तो वो इंटरव्यू लगभग 15 to 20 मिनट्स का शॉर्ट इंटरव्यू रहता है, जहाँ पे वो फिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं और आपका आंसर्स से वो जज कर लेते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं ये कोर्स के लिए, आपको कितना नॉलेज है इस बारे में, ये सब वो देख के फिर आपको एडमिट देना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज विच एवरी यूनिवर्सिटी अडैप्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस। सो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर you have source to go into every field, क्योंकि मेरा फील्ड जो है, मैंने जो कोर्स किया है उसमें मैंने मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर्स भी पढ़े हैं, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉफ्टवेयर्स भी पढ़े हैं, उसमें मैंने आईसी डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स भी पढ़े हैं, मैंने कंट्रोल सिस्टम, एडवांस कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, मैंने मेम्स फैब्रिकेशन टेक्निक्स भी पढ़े हैं, कैसे हम माइक्रो और नैनो स्केल पे फैब्रिकेशन करते हैं सिलिकॉन वेफर्स के, वो भी पढ़ा है मैंने। तो मेरा एक कोर्स ऐसा मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि it was giving me opportunity to study everything and focus on my specific interest, which was more of electronics, hardware and software. So वैसे मैंने फोकस रखा और ये बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा अभी मेरे लिए बोल सकता हूँ कि एडवांटेजेस हो रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी एप्लीकेशन करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये स्पेसिफिक काम कैसे होगा, क्योंकि मुझे पहला एक्सपीरियंस भी था, प्लस अभी का मेरा स्टडी है वो मुझे सपोर्ट भी करता है उस चीज में। तो इसके वजह से तो, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जर्मनी आ रहा है तो डेफिनेटली लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे टैलेंट बाद में आता है। तो दोस्तों, स्टडी इन जर्मनी के ये पहले एपिसोड में, पहले पार्ट में हमने अमोल से जाना कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया जर्मनी जाना, क्यों डिसाइड किया जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए जाना, और फिर वहाँ जाने के पहले उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया। आने वाले पार्ट में हम अमोल से बात करेंगे, हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि जैसे कि वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने होते हैं, रहना कैसे होता है डॉर्मेटरीज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे डॉर्मेटरीज कैसे होते हैं और एक्सपेंसेस कितने लगते हैं।
ओवरऑल एक्सपेंस कितना लगता है, डे टू डे मंथली एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। तो ये सारी बातें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम बहुत अमूल से करेंगे। तो मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक देखते रहना हमारा चैनल करियर सोच, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।